20th century English literature. Okay. So this is going to be a very important session, guys. As I have told you that in all the recent exams, the trend nowadays is that they are asking more from the ages of the 20th century. Okay. So it's going to be very important. Okay. And we know that in all exams, especially our LT lecturer exams, NET and USET specifically, they are asking more from this section. And even in LT, there is a trend of writing asking questions from this, you can say, literary age. So before starting the timeline, I would very quickly run through some important trends of this age, or should I say, the division of even the 20th century, because 20th century is quite huge. So we will see the division of 20th century, the ages within 20th century, and then we will see. So today's lecture would be divided, I can say, into three parts roughly. First is, you can say, the division of ages. You can write the lecture schedule also. First topic would be division of ages. Okay, under this topic, introduction of 20th century English literature. First, we are going to do division of ages. Then the second topic would be famous quotes, trends, and movements. Okay, so that would be the second topic, so to speak. And the third one is, of course, the timelines. Timelines would be in detail. So in detail, we will look at the timelines, and timelines will also be based on the two important factors. One is, we can say, the important socio-political events. I would request everyone to write this also. ठीक है, जैसे हम लोग बीएड में नहीं बनाते हैं, ठीक है, टॉपिक क्या होता है, वो टॉपिक पढ़ाने से पहले जो बनाते हैं लेसन प्लान, हाँ, लेसन प्लान टाइप का है ये। एक जितना हमारा मेथोडिकल होगा 20th सेंचुरी पढ़ने का तरीका, उतना अच्छा रहेगा। तो टाइमलाइंस में हमने डिटेल में दो इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे हम। एक तो इंपॉर्टेंट सोशियो पॉलिटिकल इवेंट, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है, ठीक है, इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ है, ये सारी चीजें देखेंगे। और दूसरा ऑफ कोर्स हम लोग क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि लिटरेरी इवेंट्स भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स एंड इवेंट्स, ये भी हम देखने वाले हैं। सो दिस विल बी द, वी कैन से, टाइमलाइंस में भी दो तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल, जिसे हम कह सकते हैं, आज का क्लास शेड्यूल रहेगा, या आज का कह ले, या आने वाले कंसिक्वेंटली सारी क्लासेस का शेड्यूल रहेगा। तो डिवीजन ऑफ एजेस, आइए बढ़ते हैं फिर इस तरफ, ठीक है, कि 20th सेंचुरी की जो एजेस हैं, इसमें भी कौन कौन सी एजेस हैं जो हम इसको देखते हैं, ठीक है। ये वाला जो फर्स्ट टॉपिक है, इट्स गोइंग टू बी इवन मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये याद हो गया तो आपकी टिप्स में रहेगा, टिप ऑफ द टंग रहेगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं डिवीजन ऑफ एजेस। तो अगर हम बात करें, इफ यू लुक एट द 20th century is, we can say, in terms of our division of literature, we divide it into 5 parts, and there is a code that I have given to these 5 ages of 20th century. The code is EGMPC. What is the code? EGMPC. You remember the code, you remember the ages, right? So EGMPC is the code. So now let's look at all these codes individually. So one is E, second is G, third is M, fourth is P, and the fifth is C. So you can draw in this way. So guys, the first age of the 20th century is called as Edwardian age. Very, very important, Edwardian age. Okay. Edwardian age is named after King Edward VII. ठीक है, King Edward VII, very important, यहाँ पर भी ऑप्शंस आएंगे आपके एग्जाम्स में। King Edward VII. Okay, he is called as the peacemaker. The peacemaker. Sometimes he is also called as the uncle of the world. ये नया टाइटल दे रहा हूँ, ठीक है। The peacemaker तो उनको कहा ही गया है, बट एक नेगेटिव टाइटल भी दिया गया है किंग एडवर्ड 7 को, ठीक है। क्या कहा गया? द अंकल ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ हिज हैबिट ऑफ, यू नो,
intruding in the internal affairs of other countries, he is called as the uncle of the world. ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, द अंकल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी टाइटल हम देखते हैं किंग एडवर्ड 7 को दिया गया है, ठीक है। So Edwardian age. So Edwardian age, guys, is from, we can say, 1901 to 1910. This is roughly the time period of Edwardian age, 1901 to 1910. Okay, this is also the time period when King Edward ruled. Okay, you can also call it as the first decade of 20th century. Decade is the period of 10 years, right? So first decade of 20th century. Now let's look at this G. So G stands for Georgian age. Georgian poets. Georgian poets or Georgian age. I would not call it as age. I would call it as Georgian poets only. Okay. So Georgian, Georgian poets. All right. So Georgian poets basically refers to the anthology edited by Edward Marsh in 1912. Okay. So this poetry movement starts roughly from 1912 and it is roughly continues till 1922. 1922 we will see will be a significant year in the development of modern age. So 1912 to 1922 is called as the period of Georgian poetry or Georgian age. Okay, what happened in the year 1912? Let's write. In 1912 Edward Marsh, बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवर्ड मार्श एक एडिटर थे, ठीक है। he edited an anthology, the first part of an anthology called as Georgian poetry. उन्होंने जॉर्जियन पोइट्री करके एक एंथोलॉजी को एडिट किया और उसको पब्लिश कर दिया, और यहां से हम देख सकते हैं कि जॉर्जियन एज शुरू मानी गई। He edited an anthology called as Georgian poetry, in which year 1912 he was an editor, edited Georgian poetry. Now when we see that he edited the Georgian poetry, ध्यान से सुनेंगे, Georgian poets were traditional poets. They were traditional poets, they were traditional nature lovers, just like romantics, and also in their poems you can see the use of blank verse. Okay, so blank verse is also a very important meter which suggests that the poetry is written in a traditional form. Okay, so they were traditionals, conservationists. Okay, we will look at the poets and name of the poets in detail, ठीक है, later on. Let's move on to the next stage. अच्छा, एक चीज और हुई थी यहाँ पर, जो जॉर्जियन पोइट्स हैं इनके साथ साथ ही आपका इसके 2 साल बाद यानी कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया भाई, ठीक है। हाँ, और वहां पर भी एक पोइट्स, ग्रुप ऑफ पोइट्स इमर्ज होते हैं जिनको हम कहते हैं वॉर पोइट्स। क्या कहते हैं? वॉर पोइट्स, ठीक है। तो आप इसी के पैरेलल एक यहीं पर ही आप चाहें तो यहीं से बना लीजिए, एक मूवमेंट इसी के पैरेलल बनाएंगे, इसी को कंपेयर करते हुए एक ग्रुप और आता है वॉर पोएट्स का, क्योंकि ये और कहीं नहीं आएंगे अलग से, यहीं पर साथ साथ ही आएंगे वॉर पोएट्स, ठीक है। वॉर पोएट्स का मैंने टाइम पीरियड आपको बताया 1914 टू 1918, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी लिख सकते हैं इस पीरियड में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला है आपका 1914 टू 1918, यहाँ पर लिख लेना, मैं लिख देता हूँ, चलिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है 1914 में और 1918 तक चलता है। इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में। हम जानते हैं कि जो है बहुत ज्यादा लॉस ऑफ लाइव्स है, मिलियंस ऑफ पीपल डाइड, ठीक है। एंड वी सी दैट इट क्रिएटेड अ सेंस ऑफ एंजाइटी एंड अ सेंस ऑफ, व्हाट शुड आई से, डिप्रेशन अमंग द कॉमन पीपल, ठीक है। I will come to the quotation, in the quotation section we will come, we'll discuss more about these, you can say, effects of war, but one thing I would like to give here only, and that is इनका जो लीडर थे उनका नाम हम अभी नोट कर लें, and he was Wilfred Owen. Pronunciation would be Owen, not Owen. Pronunciation is Owen. Wilfred Owen, Owen, O-W-E-N. Wilfred Owen, you can say, क्या लिखेंगे इनको, लीडर ऑफ द वॉर पोएट्स,
वॉर पोएट्स के लीडर हैं विल्फ्रेड अवन, ठीक है। और इन्होंने एक बड़ी फेमस लाइन बोली थी, एंड आई कोट, ठीक है। हम लोग वहां कोटेशन में लिख लेंगे, जिन लोगों को अभी लिखना है लिख लो, नहीं तो वहां आएगा, सुन सकते हैं आप, ठीक है। क्या है? माई सब्जेक्ट इज वॉर एंड द पिटी ऑफ वॉर, ठीक है। ये लाइन किसने बोली है करके आपके एग्जाम्स में आ रहा है लगातार, तो आंसर है विल्फ्रेड अवन ने बोली है, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर पोएट है। हाँ, माई सब्जेक्ट इज वॉर एंड पिटी ऑफ वॉर, ऐसे करके बोला है, ठीक है। तो वॉर पोएट्स, अब जब वॉर पोएट्स जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वॉर पोएट्स की ही एक सब कैटेगरी आती है। एक पोएट्स थे जो कि क्या थे, जो बड़े बड़े वॉर्स होते, वॉर जब हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ना, तो बंकर्स बनाते थे सैनिक लोग, बड़े बड़े जमीन में गड्ढे खोद देते थे काफी गहरे, और उन गड्ढों में रहकर आपने इमेजेस देखी होंगी ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज में, रियल इमेजेस में आपने देखा होगा कि वो उनमें रहते थे और अपनी बॉडी उनकी प्रोटेक्ट रहती थी उससे, ठीक है। क्योंकि फिर अगर वो एक बंकर या ट्रेंच के अंदर है, ट्रेंच का मतलब मैंने बताया था सुरंग टाइप की, और फिर वहां से फिर वो ऐसे स्टैंडर्ड से फाइट करते थे। तो एक तरीके से इसीलिए अब जो उनके एक्सपीरियंसेस थे वॉर पोएट्स के, वो क्या थे, ट्रेंच पोएट्स भी कहे गए हैं। ट्रेंच का मतलब मैंने बताया कि सुरंग, या हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जमीन में जब हम गड्ढा खोद कर वहां पर उसके अंदर जाकर फिर वहां से हम जो है बमबारी करते हैं, या फिर हम जो है फाइटिंग करते हैं, उसको कहते हैं हम ट्रेंचेस। तो इसी का एक सब ग्रुप आता है, क्या कहते हैं हम उसको, ट्रेंच पोएट्स। वॉर पोएट का सब ग्रुप निकाल दो, ट्रेंच पोएट्स, खाली मैं ग्रुप पे ही बात करूंगा, ठीक है। तो वॉर पोएट्स का सब ग्रुप आ जाएगा ट्रेंच पोएट्स। ट्रेंच का मतलब आपने लिख दिया बंकर्स, ठीक है, या बिग होल्स, ठीक है, बड़े बड़े गड्ढे जो जमीन में किए जाते थे टू प्रोटेक्ट द सोल्जर्स। इसी तरह जो जॉर्जियन पोएट्स थे, इन्हीं का एक सब ग्रुप और आया था। देखो कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ड्राइंग इंपॉर्टेंट है आज की क्लास में। तो जो जॉर्जियन पोएट्स थे, इनका भी एक सब ग्रुप आया। इसमें एक छोटा सा शहर था इंग्लैंड में, डाइमक, क्या नाम था उसका, डाइमक, DYMOCK। ये अपने जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे ना, जो अमेरिका के लेजेंडरी अमेरिकन पोएट है, फार्मर पोएट है, वो अपने उनकी पोएम्स जो है पब्लिशर्स नहीं मिल रहे थे अमेरिका में, तो वो लंदन गए और वहां लंदन में डाइमक में सेटल हो गए कुछ समय के लिए, फिर वो वापस आ गए थे अमेरिका। तो जो डायमंड में जब वो सेटल हुए, तो उन्होंने अपना एक ग्रुप ऑफ पोएट्स वहां इमर्ज हुआ, और क्योंकि वो भी बहुत ही जबरदस्त लीडरशिप क्वालिटी भी थी फ्रॉस्ट में, तो वो जहां जाते थे अपना एक ऑरा क्रिएट कर देते थे। तो वहां पर जितने भी पोएट्स थे उनके साथ साथ जो इसी ग्रुप का एक सब पोएट के तौर पे कहा जाता है, और उसने क्या लिया जाता है नाम, डायमंड, DYMOCK, डायमंड पोएट्स। इसका सब ग्रुप है ये, जॉर्जियन पोएट्री का सब ग्रुप है। जैसे वॉर पोएट्री का सब ग्रुप है ट्रेंच पोएट्स, ऐसे ही काउंटी इन इंग्लैंड। और इसमें आप एग्जांपल लिखना चाहें तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट दोनों में आ जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि ट्रेंच, ट्रेंच वर्ड मैंने बताया, ट्रेंच का मतलब बंकर, और फिर मैंने बताया डाइमक पोएट्स जो थे, डाइमक पोएट्स कौन थे, मैंने बताया सब ग्रुप ऑफ जॉर्जियन पोएट्स थे। मेन क्वेश्चन ये आएगा कि इसका सबसे बड़ा लीडर कौन था, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे। डाइमक पोएट्स का लीडर कौन था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस समय इंग्लैंड में रह रहे थे, ये भी बताया मैंने, अमेरिकन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, लेकिन इंग्लैंड में उनकी पहली पोएम्स छपी हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट LT लेक्चर वालों के तो बहुत ही बड़े पोएट हैं, और बहुत क्वेश्चन इनसे बनते हैं। खैर, तो मैं आपको टॉपिक पे ले जाता हूँ। जॉर्जियन पोएट्स ट्रेडिशनल नेचर पोएट्स थे। डाइमक पोएट्स इनका एक सब ग्रुप था। डाइमक इज अ नेम, अ प्लेस, अ काउंटी इन इंग्लैंड। लीडर वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यहाँ ट्रेंच पोएट्स आ गए। अब हम बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, एंड दैट इज एम, एंड एम फॉर मॉडर्न, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा, अगर आप ग्रुप कहोगे इस 20th सेंचुरी में, फर्स्ट हाफ में अगर मुझे कहना हो, तो मैं कहूंगा मॉडर्न एज, ठीक है, मॉडर्न एज। जितने स्टार आप लगाना चाहें इसमें लगा दें, क्योंकि यहाँ से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। सारे क्वेश्चन, जैसे हम अर्ली एजेस में एलिजाबेथन एज है ना, बिल्कुल हाईलाइट है। एलिजाबेथन से एज वाले, पुरानी वाली एजेस से कम बनेंगे, लेकिन एलिजाबेथन से सारे बनेंगे। ऐसे ही सारे क्वेश्चन यहाँ पर 20th सेंचुरी में कंसंट्रेट रहेंगे हमारे मॉडर्न एज में, स्पेशली TGT PGT के साथियों के लिए। मैं फिर बता रहा हूँ, यूसेट और नेट के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन अंदर से और भी एजेस से बनेंगे, ठीक है। तो मॉडर्न एज 5 स्टार। सो गाइज, मॉडर्न एज इज कॉल्ड एज, or is said to begin with
in the year, very important year, 1922, considered as the high point of modernism, 1922, and it concludes with the end of the Second World War. 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है। ठीक है, तो यानी कि शुरू कब हुआ है, बताओ भाई, 1939 में शुरू हुआ है। तो यहाँ 45 से सर्कल ले लिया सबने, और जो हमारे नए बच्चे हैं उनके लिए हो गया कि 45 में क्या है, वर्ल्ड वॉर टू एंड्स। ठीक है, और फिर आपने दूसरा फैक्ट क्या लिख लिया कि वर्ल्ड वॉर टू का टाइम पीरियड आपने नोट करा 1939 से 1945 तक। ठीक है, दिस इज द टाइम पीरियड। ये बिल्कुल आप इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री कर रहे हैं, तो आपको ये वर्ल्ड वॉर्स तो एटलीस्ट कम से कम आज की क्लास में याद हो जाना चाहिए। 14 to 18 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और 39 to 45 सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जहां पर खत्म होता है वहीं पर ही हमारी मॉडर्न एज भी खत्म मान ली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे कि जो मॉडर्न एज है हमारी ना, ये मॉडर्न एज को, ठीक है, बहुत सारे हम नेम से जान सकते हैं, और लेकिन इसमें जो एक टर्म इसके लिए यूज किया जाता है, अवांत गार्दे, फ्रेंच वर्ड है, नोट करेंगे सारे बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, AVANT, अवांत गार्दे, GARDE, अवांत गार्दे, विच मीन्स होता है चेंज ऑफ गार्ड। अवांत मीन्स चेंज, फ्रेंच लैंग्वेज। ये भी पूछा जाएगा कि ये अवांत गार्दे फ्रेज कौन सी एज के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे अगर आप पूछ रहे हैं तो, या आपको मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे बनेंगे। तो आप कहेंगे भाई मॉडर्न एज के लिए यूज किया जाता है, और मॉडर्न एज का टाइम पीरियड है ये भी आ जाएगा। और अवांत गार्दे का मतलब क्या बताया मैंने, चेंज ऑफ गार्ड। गार्ड का मतलब होता है पोजीशन, यानी पोजीशन मतलब ट्रेडिशनल अप्रोचेस। ध्यान से सुनेगी पूरी क्लास। गार्ड का मतलब क्या है, ट्रेडिशनल ओपिनियंस, ट्रेडिशनल पोजीशंस। ठीक है, तो उनमें जब बदलाव की बात की करता है मॉडर्न एज, इसीलिए इसको क्या कहा गया, मॉडर्न। आप लोगों को मैंने पुरानी क्लासेस में भी बताया कि मॉडर्न के मतलब दो हैं लिटरेचर में। ठीक है, एक तो प्रयोगवादी, एक्सपेरिमेंटल, नए बच्चे नोट कर लेंगे। मॉडर्न वर्ड के क्या मतलब है दो लिटरेचर में, एक्सपेरिमेंटल, और दूसरा क्या बताया था, साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल, ठीक है, कहीं पर आप साइड नोट लेंगे चार्ट से बाहर। ठीक है, मॉडर्न के लिटरेचर में क्या मतलब है, एक तो एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, प्रयोगवादी साहित्य है भाई, और दूसरा मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजिकल है। एक्सपेरिमेंटल और साइकोलॉजिकल है, ये इसके दो मतलब। ठीक है, कोई भी वो साहित्य जो हमारे मनोवैज्ञानिक जो द्वंद हैं, ठीक है, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करेगा, वो मॉडर्न होगा। और कोई भी वो साहित्य जिसमें पुरानी परंपराओं को, पुराने मिथकों को तोड़ा जाएगा, पुराने जो चले आ रहे पैटर्न्स हैं उनको ब्रेक किया जाएगा, और कुछ नए पैटर्न्स स्थापित किए जाएंगे, वो भी मॉडर्न है। ठीक है, लिटरेचर के कंटेक्स्ट में हम ये कहेंगे। ठीक, चलिए हम आगे आते हैं टॉपिक पे। तो मॉडर्न एज, तो 1922 भाई बहुत ही सिग्निफिकेंट ईयर है, मैं कई बार इस पर बात कर चुका हूँ कि इसमें दो फैक्ट्स आपको बिल्कुल घोट जाने हैं, याद कर देने हैं। वो ये है कि 1922 में एक तो आया है आपका टीएस एलियट का वेस्टलैंड। ठीक है, 1922 में क्या आया है, टीएस एलियट का वेस्टलैंड, जिसको मॉडर्न एपिक कहा गया है। और द वेस्टलैंड 5 पार्ट्स में डिवाइडेड एक पोयम है। ठीक है, जिसको क्या कहा गया है, मॉडर्न एपिक। मॉडर्न एपिक, ग्रेटेस्ट मॉडर्न पोयम कहा गया है। 1922 में आया है टीएस एलियट का। और दूसरा आपका आया है, मैंने बताया है, जेम्स जॉयस से, जो कि मॉडर्न नॉवेलिस्ट के फादर कहे गए, उनका नॉवल आया है बहुत ही फेमस, यूलिसिस। ये दोनों फैक्ट्स तो आप बिल्कुल रटी दो। ठीक है, तो 1922 में टीएस एलियट का द वेस्टलैंड और जेम्स जॉयस का नॉवल है ये। यहाँ पर वेस्टलैंड क्या है, पोयम है, और यहाँ पर यूलिसिस क्या है, नॉवल है। ये ग्रेटेस्ट मॉडर्न पोयम है द वेस्टलैंड, और यूलिसिस क्या है, ग्रेटेस्ट मॉडर्न नॉवल है। ठीक है, चलो भाई बताओ जल्दी से, जेम्स जॉयस का कंट्री क्या है, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, इंग्लिश, आयरिश, स्कॉटिश। आयरिश, याद रख लेना इनकी कंट्री ना। जेम्स जॉयस की कंट्री क्या है, आयरिश है, इंग्लिश नहीं है। ठीक है, आयरिश मैन है। और अगर हम बात करें
अगर हम बात करें टीएस एलियट की, तो टीएस एलियट तो कहाँ के हैं वैसे? अमेरिकन। टीएस एलियट क्या है? अमेरिकन है, बट सेटल्ड इन इंग्लैंड। कौन से ईयर में टीएस एलियट ने सिटीजनशिप ले ली थी अमेरिका इंग्लैंड की? 1928, बिल्कुल 1928। यही फैक्ट्स याद करने हैं आपने। 1928 में टीएस एलियट, द ग्रेट अमेरिकन पोएट, बिकेम एन इंग्लिश सिटीजन। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि टीएस एलियट क्या है, तो कहेंगे आप कि फर्स्ट हाफ में अपनी लाइफ के अमेरिकन है, सेकेंड हाफ में अपनी लाइफ में वो क्या है? इंग्लिश मैन है। ठीक है, इसीलिए टीएस एलियट एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है। ठीक है, हाँ, इनकी पोएम्स इंटरनेशनल इसलिए एक्सेप्टेड है क्योंकि हैं ये अमेरिकन, बट लेटर ऑन हो गए हैं ब्रिटिश। खैर, टीएस एलियट पे पूरा सेपरेट ऑथर सीरीज आ जाएगी। जेम्स जॉयस का यूलिसिस आया। साथियों, तीसरा फैक्ट है, 1922 में बीबीसी की स्थापना होती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप सब लोगों के लिए, बीबीसी वॉज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि लैंग्वेज पूरी जो ब्रिटिश लैंग्वेज है उसको पूरे वर्ल्ड लेवल पर फैलाने का काम ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन करता है। अभी भी मैंने बताया था कि जो जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसको हम क्या बोलते हैं? बीबीसी इंग्लिश भी बोलते हैं। ठीक है, तो बीबीसी एक, ऑफ कोर्स, एक हम कह सकते हैं मीडिया चैनल है, एक हम कह सकते हैं कि न्यूज चैनल था, और इसका नाम था ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। कई बच्चे में से पूछते भी हैं कि सर ब्रिटिश इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें स्पोकन, तो बीबीसी पढ़ लो, बीबीसी के न्यूज चैनल्स, न्यूज एंकर्स को सुनो। ठीक है, यूट्यूब में आप बीबीसी की एक सीरीज भी बता दे रहा हूं मैं, ये जो वो बच्चे हैं जो ब्रिटिश इंग्लिश एक्सेंट को सीखना चाहते हैं, हार्ड टॉक, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है तुम लोगों के लिए, ये अपने लिए लर्निंग के लिए है। हार्ड टॉक की सीरीज देखना आज घर पे जाके यूट्यूब में। हार्ड टॉक एक, जैसे हमारे यहाँ सीधी बात और इस तरीके के न्यूज चैनल्स में हिंदी में नहीं आते, बिल्कुल फेस टू फेस कन्वर्सेशंस हैं, तो हार्ड टॉक की सीरीज। तो साथियों, मैंने बीएचयू से मास कम्युनिकेशन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। तो वहां पर जब मैं मास कम्युनिकेशन करता था तो मेरा लैंग्वेज इंग्लिश ही था, हिंदी नहीं था उस समय। तो वहां पर हमारे जो एक्सपर्ट्स थे जो बीएचयू में, उन लोगों ने हमें बताए थे सब चैनल्स और ये बुक्स वगैरह ना। तो ये बीबीसी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए, और ये हेल्प करेगा आपको, खासकर हार्ड टॉक वाली सीरीज अगर आप देखेंगे। खैर, मैं टॉपिक पे आता हूँ। तो बीबीसी वॉज स्टैब्लिश्ड, और मैंने ये भी बता दिया कि ब्रिटिश इंग्लिश को क्या कहते हैं हम, एक नाम उसका बीबीसी इंग्लिश भी है, अगर एक क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछते हैं बच्चे कि सर हम स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं तो अमेरिकन बोले कि ब्रिटिश? तो मैंने बताया है कि हमें ब्रिटिश फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को ही यहाँ पर जो है प्रेफरेंस देते हैं, उसी को प्रायोरिटाइज करते हैं। तो इस तरीके के और भी फैक्ट हैं, जैसे कि आप देखेंगे, ठीक है, आपके अमेरिकन जो है यूजिन ओनिल, ठीक है, यूजिन ओनिल, बहुत सारे फैक्ट हैं लेकिन मैं 3-4 ही लिखा रहा हूँ अभी। यूजिन ओनिल का जो ड्रामा है द हेरी एप, द हेरी एप, वो भी 1922 में ही आया है। पक्का क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर उत्तराखंड वालों के लिए एलटी में, या अदर स्टेट्स में एलटी में, द हेरी एप, यूजिन ओनिल, EUGENE, यूजिन ओनिल, NEILL, यूजिन ओनिल का प्ले का नाम है, ये प्ले लिख देना इसमें, द हेरी एप, HAIRY, हेरी एप, APE, एप। जी, एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि यूजिन ओनिल को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न अमेरिकन ड्रामा। मैंने एमसीक्यूज की कॉपी में भी लिखा है फैक्ट। ठीक है, फादर ऑफ अमेरिकन ड्रामा या फादर ऑफ मॉडर्न अमेरिकन ड्रामा यूजिन ओनिल, लिख लिया सबने? फादर ऑफ मॉडर्न अमेरिकन ड्रामा। तो देखो, एक पोइट्री में ले लिया एग्जाम्पल, एक नॉवल में ले लिया, और एक इधर ले लिया प्ले में, और एक कॉमन एग्जाम्पल ले लिया लैंग्वेज का। 4 एग्जाम्पल बता दिए मैंने। ऐसे अगर हम जाएं तो बहुत सारी सिग्निफिकेंट पॉइंट्स है 22 में। चलिए, तो हम फिलहाल जो मॉडर्न एज है उसमें अगर लेजेंड्स के नाम लें, बड़े राइटर्स, तो टीएस एलियट, जेम्स जॉयस तो आपने देख ही लिए, लेकिन एक बहुत ही बड़े जो कहा जाता है थर्ड पिलर ऑफ मॉडर्निज्म कही जाती है, और वो है वर्जीनिया वुल्फ। ठीक है, क्योंकि वर्जीनिया वुल्फ सिंगल हैंडेडली फेमिनिज्म का जो है टॉर्च बियरर है, वो फेमिनिज्म की जो है टॉर्च बियरर है, वो फेमिनिज्म का एक कह सकते हैं कि जो मशाल है वो लेकर चलती हैं। और इसके अलावा वर्जीनिया वुल्फ जो है
सफ्रेगेट मूवमेंट से भी जुड़ी थी, जो कि वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन था। तो वर्जीनिया वुल्फ भी एक लेजेंड है, आप लोग को सुना दे रहा हूँ खाली, हम लोग इस पर बात करेंगे राइटर सीरीज में। तो मॉडर्न एज में वर्जीनिया वुल्फ, टी.एस. एलियट और जेम्स जॉयस, ठीक है, ये तो तीन बड़े राइटर हो गए। अगर हम थोड़ा और अंदर जाएंगे तो एक ग्रुप आएगा, पूरा का पूरा ग्रुप आपको याद करना रहता है वो, और वो है ब्लूम्सबेरी ग्रुप, जिससे बहुत सारे भर भर के क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं। वो मैं, इतना इंपॉर्टेंट ग्रुप है कि यहीं पर चार्ट में लिखना चाहूंगा उसको। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे ब्लूम्सबेरी ग्रुप। इसका प्रोनाउंसिएशन ब्लूम्सबेरी होता है, बेरी, बरी नहीं होता। ब्लूम्सबेरी ग्रुप, ये एक ग्रुप ऑफ मॉडर्न होमोसेक्सुअल राइटर्स था, ठीक है, जो ब्लूम्सबेरी नाम की एक लंदन में जगह थी जहां पर ये लोग रेगुलर अपनी मीटिंग करते थे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने वाले हैं गाइस, 5 स्टार पॉइंट है। ब्लूम्सबेरी ग्रुप की जो जो इस मीटिंग को कन्वीन करती थी, इसकी जो रेगुलर मेंबर थी या जिनके घर पर ये पार्टीज होती थी या मीटिंग्स होती थी, वो थी अगेन वर्जीनिया वुल्फ और उनकी सिस्टर वेनेसा वुल्फ। ये दो बहनें थी और इनके दोनों के हस्बैंड्स थे। तो चार लोग तो यही थे, याद से सुनना, ये दो बहनें वर्जीनिया और वेनेसा, वर्जीनिया और वेनेसा और उनके दोनों के हस्बैंड्स। तो चार तो ये फैमिली मेंबर ही थे जो कि ब्लूम्सबेरी ग्रुप के कोर मेंबर थे, ठीक है। तो लेकिन मैंने बताया कि इन दोनों में सिबलिंग राइवलरी भी थी। वर्जीनिया और वेनेसा दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिशन जैसा भी देखने को मिलता है, और दोनों एक दूसरे से कई बार ऐसे इंसिडेंट्स भी हैं कि पॉलिमिकल भी हो गए, यानी कि अटैकिंग भी लिखा है। बट एट द सेम टाइम इसमें फिर ई.एम. फॉस्टर जैसे दिग्गज भी आने लग गए। और फिर हम देखते हैं डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, बहुत बड़ा नाम है मॉडर्न एज में, डी.एच. लॉरेंस, जिन्होंने लिखा था सन्स एंड लवर्स, तो वो भी ब्लूम्सबेरी ग्रुप का हिस्सा है। तो आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े, आप देख सकते हैं राइटर्स, नॉवेलिस्ट इसका धीरे धीरे हिस्सा बने। फिर लिटन स्ट्रेची पर मैं बात कर चुका था, ठीक है, जिन्होंने एमिनेंट विक्टोरियंस लिखी है, एंटी विक्टोरियन बायोग्राफी, एमसीक्यू सीरीज याद दिला रहा हूँ। और उसके अलावा इसमें आप देखेंगे तो और भी बहुत सारे मेंबर्स आपको मिल जाएंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये थी मॉडर्न एज। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद पी, यानी कि पी से है पोस्ट मॉडर्न, ठीक है। तो पी से क्या है, पोस्ट मॉडर्न आपकी एज आ जाती है, ठीक है। सो पी इज फॉर पोस्ट मॉडर्न, ठीक है। मॉडर्न के जस्ट बाद की एज है पोस्ट मॉडर्न। तो ईजीएमपीसी में एडवर्डियन, जॉर्जियन, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न। तो पोस्ट मॉडर्न भाई 1945 से शुरू हो गई है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है, ये शुरू हो गई एज। और फिर डेथ ऑफ टी.एस. एलियट, टी.एस. एलियट जो कि 1965 में डेथ किए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ईयर का सिग्निफिकेंस जरूर लिखेंगे, 65 के आगे जरूर लिख देंगे, क्या बोला है मैंने, डेथ ऑफ टी.एस. एलियट, ठीक है। टी.एस. एलियट की डेथ के साथ पोस्ट मॉडर्न एज खत्म मानी जाती है, ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्न एज में तो बहुत सारे ग्रुप्स आए हैं, ठीक है, इनके ग्रुप्स के नेम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ ना, तो उसके बाद क्या हुआ कि ऐसी जनरेशन आई कि इंग्लैंड में जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में थे, और अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, बेरोजगारी थी, गरीबी थी। लंदन 1941 में हिटलर ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया था, और एक तरीके से सेंस ऑफ डिस्पेयर एंड पेन, सफरिंग, ये सब था। तो इसीलिए जो 50s का डिकेड है ना, यहाँ से क्वेश्चन एलटी लेक्चरर नेट सभी के लिए बनेगा। 50s का डिकेड है, दो चीजों के लिए जाना जाता है। अगर हम नॉवेल्स में बात करें तो एंग्री यंग मैन आ गए भाई, ड्रामा में आए मेनली ये, लेकिन नॉवेल्स में भी आ गए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रुप निकल कर आता है, क्या नाम है इनका, एंग्री यंग मैन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये, पोस्ट मॉडर्न के अंदर लिखेंगे आप। 1950s में आया है ग्रुप एंग्री यंग मैन, जिसको लीड कर रहे थे जॉन ऑसबॉर्न। कौन कर रहे थे, जॉन ऑसबॉर्न, OSBORNE, जॉन ऑसबॉर्न, ठीक है। इनका प्ले अगर आप लोग एमए में जनरली हैं उत्तराखंड में, लुक बैक इन एंगर आपने पढ़ा होगा, जॉन ऑसबॉर्न का लुक बैक इन एंगर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले माना जाता है। तो खैर, अभी हम राइटर्स पे डिटेल जाएंगे, अगर आप नहीं लिख पा रहे कोई दिक्कत है नहीं, सब चीजें कवर होंगी। बस आज के मेजर ट्रेंड्स और इनको आप पूरे फोकस के साथ सुनते रहिए, ठीक है। तो जॉन ऑसबॉर्न बोला मैंने, OSBORNE, जॉन ऑसबॉर्न का लुक बैक इन एंगर, बहुत फेमस प्ले है।
तो एंग्री यंग मैन गाइस कहाँ कहाँ पर थे ये, आपको बस इतना समझना है क्योंकि बेसिक का लेक्चर है। एक तो थे ड्रामा में थे ये, यानी प्लेज लिख रहे थे, और नॉवेलिस्ट भी थे। हाँ, ये नॉवेलिस्ट भी थे, ड्रामा और नॉवेलिस्ट दोनों में थे। जैसे लिखा रहा हूं वैसे लिख लेना, ठीक है। जॉन ऑसबॉर्न तो ड्रामा में थे, लुक बैक इन एंगर वाले, और नॉवेल्स में कौन थे? किंग्सले एमिस, किंग्सले एमिस, ठीक है, बहुत खतरनाक राइटर है। अपने नॉवेल्स में इन्होंने जो गुस्सा दिखाया है ना उस जनरेशन का, बहुत ही आज भी याद किया था ये। किंग्सले एमिस का लकी जिम एक नॉवल है, लकी जिम, ठीक है, एक एंग्री हिस्ट्री प्रोफेसर का गुस्सा दिखाया है इसमें, किंग्सले एमिस का लकी जिम, ठीक है। चलिए, तो एंग्री यंग मैन कब आए थे ये? 1950s में आए थे, 1950s में, 1950 के दशक में। क्वेश्चन ऐसे आएगा, आए कब थे करके, ठीक है। दूसरा मूवमेंट आया था पोइट्री में, किसमें आया था भाई? पोइट्री में, सेम टाइम पीरियड 50s में ही चल रहा है ये भी। और इस मूवमेंट का नाम ही क्या था? मूवमेंट। इसका नाम ही क्या था? मूवमेंट, ठीक है। तो इसको कहते हैं मूवमेंट पोएट्स, ताकि कंफ्यूजन ना हो, हम इसको क्या क्या कह देते हैं? मूवमेंट पोएट्स। कैपिटल ले लीजिएगा, इसका नाम क्या है? मूवमेंट पोएट्स करके ग्रुप ऑफ पोएट्स था ये, ठीक है, मूवमेंट पोएट्स। इसके जो बस एक ही राइटर लिखा रहा हूं खाली आज, ठीक है, वो थे फिलिप लार्किन। कौन थे? फिलिप लार्किन। ये जो लोग एमए कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये सेशन ना, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रेंड्स पता चल जाएंगे। फिलिप लार्किन बहुत बड़े पोएट हैं, LARKIN, फिलिप लार्किन, ठीक है, मूवमेंट पोएट्स। ये लाइब्रेरियन थे बाय प्रोफेशन। और फिलिप लार्किन का जो बेसिकली कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि इन्होंने ना बहुत डेयरिंग पोइट्री लिखी है, एंटी मॉडर्निस्ट। जो TS एलियट वगैरह ने मॉडर्निज्म लाए थे उसकी जस्ट अपोजिट लिखी है। और इनकी पोइट्री में बहुत ज्यादा कलेक्टिव स्लैंग्स का यूज है, इसलिए इसमें वर्ड यूज कर रहे हैं मूवमेंट। मूवमेंट मतलब इन्होंने सोसाइटी को हिला के रख दिया अपनी कविताओं से, स्टर किया। मूवमेंट मतलब कोई ना कोई गतिविधि ना। तो मैंने क्या बोला? फिलिप लार्किन का पोएम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पोइट्री में आया था ये मूवमेंट। बात हो रही है 1950s में। तो पोस्ट मॉडर्न आ गया तुम्हारा। अभी फिलहाल इसमें दो मूवमेंट्स बेसिक लेवल पे इंपॉर्टेंट है। एक मूवमेंट यहाँ पर भी मैं बताना भूल गया, अभी आएगा। एक यहाँ पर पहले इसको कंप्लीट करते हैं। सी क्या है भाई? कंटेम्प्ररी एज। सी क्या है? कंटेम्प्ररी एज, ठीक है, जो आपका लास्ट है कंटेम्प्ररी, समकालीन। तो कंटेम्प्ररी एज कब से मानी गई है? 1965 से लेकर टिल डेट, अभी तक जो है ये कंटेम्प्ररी मानी गई। 1965 से लेकर टिल डेट तक हम इसको कंटेम्प्ररी मान लेते हैं, ठीक है। अब कुछ चीजें जो छूट गई इसी चार्ट में, बहुत जोरदार सा चार्ट बन गया है, पूरी क्लास इस चार्ट में खत्म है आज, है ना। और यहाँ पर एक छूटा, जो बड़ा ग्रुप छूटा है वो मैं यहाँ कवर करता हूँ। मॉडर्न एज में छूटा है एक, देखो 20 से 45 तक चली ना एज, तो बीच में एक डेकेड आया जिसको हम कहते हैं रेड डेकेड, और वो है, मैंने पढ़ाया है तुम लोगों को थोड़ा बहुत क्वेश्चंस में, ठीक है, 1930s का डिकेड है। कौन सा डिकेड है? 1930s का। इसके बीच में लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, यानी कि मॉडर्न एज के अंदर लिख रहा हूँ, ब्लूम्सबरी के नीचे। आपको प्लेसमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए आपका भी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हैं, ठीक है, इनको कहा गया है मैक स्पॉन्डे। क्या कहा गया है? मैक स्पॉन्डे, MACSPAUNDAY, मैक स्पॉन्डे। जितने मैं बता रहा हूँ उतने सभी को याद करने हैं। मैक स्पॉन्डे, MACSPAUNDAY, एक साथ ही लिख देना अटैच करके, मैक स्पॉन्डे ग्रुप, ठीक है। यानी कि इनको कहा गया है पोएट ऑफ 30s। इनको और क्या कहा गया गाइस? पोएट ऑफ 30s, 30 के दशक के कवि, पोएट ऑफ 30s या 1930s लिख दो आप, ठीक है, पोएट ऑफ 1930s। तो भाई इनका जो ये जो नेम है ना, ये नेम ही अपने आप में एक्रोनिम है। इसमें 4 पोएट्स के नाम छुपे हैं। जैसे MAC जो है ये क्या है? मैकनीश है,
SP क्या है? स्पेंडर है। AUN जो है ना, AUN बस खाली एक एक ही बता रहा हूँ अभी। AUN जो है ये लीडर है इनका, AUN, और ये AUN क्या है, सर्कल कर दिया ग्रीन पेन से मैंने, अडन। इनको अडन नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? अडन, WH अडन। तो बस इस ग्रुप का जो लीडर है उनका नाम आप नोट करेंगे, WH अडन। ठीक है, विंस्टन ह्यूग्स अडन, ये जो है इस ग्रुप के लीडर। तो आइए रिपीट करते हैं मेरे साथ और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मैंने बोला EGMPC, Edwardian, first age 1901 to 1910, King Edward VII, also called as the peacemaker, peacemaker. ओके, द पीसमेकर इन्हीं को कहा जाता है। इनको द अंकल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा गया, क्योंकि हिज हैबिट ऑफ, यू कैन से, इंटरफेयरिंग इन द अफेयर्स ऑफ अदर कंट्रीज। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो, वैसे आएगा नहीं, पता होना चाहिए लेकिन, ठीक है। हिज हैबिट ऑफ इंटरफेयरिंग इन द अफेयर्स ऑफ द अदर कंट्रीज, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड एज द अंकल ऑफ द वर्ल्ड। देन अच्छा, एडवर्डियन एज में मैंने आपको राइटर्स थोड़ा सा फिल इन नहीं करवाए हैं। तो यहाँ पर भाई 3 बड़े राइटर तो बनते ही हैं। एक जो सबसे बड़ा राइटर इस एज का है, देखते हैं कौन बता रहा है। किसको मिला है भाई 1907 में नोबेल प्राइज? रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है, ये किपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली इंटरनेशनल लेवल के लिए ही नहीं बल्कि इंडियन कंटेक्स्ट में भी, क्योंकि इनका जो नॉवल है ना किम, वो बहुत बार पूछा जा रहा है। किपलिंग पहले ब्रिटिश राइटर हैं, याद दिलवा दे रहा हूं फिर से, पहले ब्रिटिश राइटर हैं जिनको नोबेल है। और कब है इनको? 1907 में, 1907 में फर्स्ट ब्रिटिशर टू रिसीव नोबेल इन लिटरेचर वाज रुडयार्ड किपलिंग। और सारे बच्चों को इनकी 2-3 वर्क्स याद कर लेने हैं बस। एक तो किम, किम एक ऐसा नॉवल है इनका, ठीक है, किम एक ऐसा नॉवल है, हम लोग टाइमलाइन में पढ़ेंगे इस पर। तो किम जिसमें इंडियन सेटिंग के साथ है, किपलिंग का इंडियन कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, इंडिया में ही पैदा हुए और यहाँ इन्होंने बर्मा में काफी समय एज अ पुलिस इंस्पेक्टर सर्विस भी करी है। किसने? किपलिंग ने। ठीक है, और किपलिंग वही शख्स है जिसने कहा था व्हाइट मैन बर्ड, ठीक है, हाँ, व्हाइट मैन बर्डन वाली जो बात थी ना, किपलिंग की तो है। ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं ना इन्होंने, शॉर्ट स्टोरीज, नोवेला, ठीक है, द जंगल बुक वाले किपलिंग, ठीक है, किम वाले किपलिंग। और किपलिंग जिन्होंने लिखी एक बहुत फेमस पोयम, मोटिवेशनल पोयम, किसी को पढ़नी है तो इफ, हाँ, किपलिंग की पोयम इफ भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है। ठीक है, पहले से यहाँ कुमाऊं यूनिवर्सिटी में लगती थी इधर ये पोयम, इफ, IF, इफ लिखा है मैंने। ठीक है, तो ये एक हो गए किपलिंग। दूसरे राइटर अगर हम बात करें तो दूसरे राइटर नोट कर लेना, बड़े राइटर्स खाली लिखा रहा हूं मैं, ठीक है, वो है आपके H.G. वेल्स, द टाइम मशीन वाले, H.G. वेल्स। ये चल रहे हैं एडवर्डियन एज में हम अभी, ठीक है, किपलिंग और H.G. वेल्स, 3 ही राइटर लिखाऊंगा खाली अभी फिलहाल। ठीक है, और तीसरे राइटर अगर हम बात करें, किपलिंग, H.G. वेल्स, तो भाई हम G.B. शॉ को इग्नोर नहीं कर सकते, G.B. शॉ, ठीक है, बहुत ही बड़े राइटर G.B. शॉ। ठीक है, 1925 में नोबेल प्राइज विनर है G.B. शॉ। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि शेक्सपियर के बाद दूसरे ओवरऑल सबसे ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट अगर कोई है पूरे इंग्लिश लिटरेचर में तो ये आयरिशमैन है, G.B. शॉ। G.B. शॉ एक आयरिशमैन है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हाँ, आयरिश है ये। और सेकंड ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ द वर्ल्ड, वैसे मैंने इनको ऐसे भी लिखा है ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ द वर्ल्ड भी कई कई बार कहा जाता है इनको, बहुत बड़ा टाइटल है यार, आप ये जरूर नोट करें। G.B. शॉ को क्या कहा जाता है? ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ द वर्ल्ड। ड्रामेटिस्ट नहीं कह रहा हूं मैं, प्ले राइट कह रहा हूँ, ठीक है, ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है G.B. शॉ को। आर्म्स एंड द मैन वाले, ठीक है, G.B. शॉ, सेंट जॉन वाले। तो खैर, और क्या बोला मैंने? 1925 नोबेल प्राइज याद रख लो यार, है ना, फैक्ट्स सारे। नोबेल प्राइज इनको मिला है 1925 में। इनसे 2 साल पहले एक और आयरिशमैन है, किसको मिला है 2 साल पहले? W.B. यीट्स। W.B. यीट्स को 1923 में मिला है। ये दोनों आयरिश एक साथ याद कर लो। और G.B. शॉ को 1925 1925 में नोबेल प्राइज है, ठीक है, G.B. शॉ को 1925 में नोबेल प्राइज है, ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ द वर्ल्ड मैंने बोला इनको। और तो ये आपका बात हो गई थी, हाँ जी,
बिल्कुल, जीबी शॉ के बारे में एक खास बात ये भी है कि इनको ऑस्कर भी है, नोबेल के साथ साथ इनको ऑस्कर भी है। ये क्वेश्चन मैंने लिखवाया था तुम्हें, ठीक है। हाँ। एक और चीज मैं अनाउंस कर रहा हूँ आज की, हमारा जो आज का स्पेशली आज का सेशन जो है 4 बजे वाला भी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि एमसीक्यू की सीरीज में मैं जो आज एमसीक्यूज करा रहा हूँ वो वेस्ट बंगाल स्लेट 2017 दिसंबर 2023 में हुआ है, यानी कि अभी 3 दिन पहले हुआ है, उसके क्वेश्चंस करा रहा हूँ, उसी को एमसीक्यूज बना के आपके लेवल पे लेकर आ रहा हूँ। तो 4 बजे वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको मैं शायद हो सकता है कि यूट्यूब में भी डालूंगा, तो जिनका अगर कोई साथी हमारे साथ सभी में नहीं जुड़े हैं तो वहां मिल जाएगा उनको। और दूसरी बात, ये वाला सेशन भी मैं यूट्यूब में डालने वाला हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया है, ठीक है। तो सभी बच्चे इस वाले क्लास जो जो क्लास है ना, आपको उनको मार्क कर लो आप डेट और टाइम के हिसाब से, तो उन डेट्स और टाइम्स को आपने बिल्कुल छोड़ना नहीं, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। तो ये भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा कब सबने कि वेस्ट बंगाल स्लेट पेपर आपको मैं दे दूंगा, कब हुआ है ये, 17 दिसंबर 2023। बिल्कुल आपको स्पीड पकड़ के चलनी पड़ती है कंपटीशन में, कहाँ कौन सा पेपर कब हो रहा है, कहाँ से मुझे कैसे फायदा होगा, ये सब आपको थोड़ा देखना पड़ता है। तो 17 दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर आप लोग ले लेंगे, नहीं तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। अभी 3 दिन पहले रिसेंट क्वेश्चंस, एलटी लेक्चर वालों के लिए सारे क्वेश्चन काम के नहीं है, बट जितने मैंने निकाल दिए आज और जिन पर मैं क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं आज, ठीक है, तो अभी उसको आप देखिएगा भी मत, ठीक है, सस्पेंस रहने देते हैं, हम लोग देखेंगे ना कि हम लोग को कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें से 4 बजे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पेपर मैं बना के दे रहा हूं उसमें से उसको देखना आप, ठीक। चलिए खैर, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आज, लेकिन फिर भी इसको खाली कंक्लूड कर रहा हूं। तो मैंने बताया एडवर्डियन किंग एडवर्ड 7 हो गए, और यहाँ पर किपलिंग वेल्स और जीबी शॉ हो गए, ठीक। उसके बाद फिर जॉर्जियन आ गया, जॉर्जियन में ये एक्चुअली किंग जॉर्ज 5 के नाम पर है, ये नहीं बताया था मैंने, जॉर्ज पंचम जिनको कहा गया। आपने हिंदी में एक चैप्टर पढ़ा होगा जॉर्ज पंचम की नाक, हिंदी में ना एनसीईआरटी में, ठीक है। तो ये वही जॉर्ज 5 है जो भारत में आए थे, फिर मॉन्यूमेंट्स बनाए हमने उनके, इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी जो कहते हैं कि जनगण मन लिखा इन्हीं के आने पे लिखा था ना, तो वही जॉर्ज 5, इनका नाम है जॉर्ज 5, ठीक है। तो किंग जॉर्ज 5 इनका टाइम पीरियड अभी नहीं बता रहा हूँ मैं, रीनिंग वाला। तो ये खैर 1912 से 1922 तक का जो टाइम है, उसमें 12 में क्या हुआ, एडवर्ड मार्श ने जॉर्जियन पोइट्री एडिट करी, साथ साथ जॉर्जियन पोइट्री का एक सब ग्रुप बनाया है, यहाँ पर मैंने अभी डिलीट कर मिटा दिया है, वो था डायमॉक पोइट्स। फिर इसी टाइम पीरियड में वॉर पोइट्स आ जाएंगे, जिसका लीडर है विल्फ्रेड अर्बन। फिर इसी में आपके क्या है, सब ग्रुप आया ट्रेंच पोइट्स। ट्रेंच पोइट्स में मैंने नेम नहीं लिखा है, वैसे सिगफ्रिड ससून है इसका, अगर आप लिखना चाहें ससून करके, सिगफ्रिड ससून, SIEGFRIED, सिगफ्रिड ससून, SASSOON। वॉर पोएट में भी आ जाते हैं ससून, ठीक है, सिगफ्रिड ससून। मैं तो ये सजेस्ट भी करूंगा कि आप इसको दोबारा से फिर से भी बना दीजिएगा, रफ में अगर फेयर में भी बना दिया आपने, इस चार्ट को फिर से बनाइएगा आप ना 2 बार। हाँ, SIEG, मैं साफ साफ लिख देता हूँ, FRIED, SIEGFRIED, सिगफ्राइड ससून, SASSOON, सिगफ्रिड ससून फ्रेंच पोएट है, ठीक। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय एक्टिव थे। फिर मॉडर्न एज का टाइम पीरियड ये हो गया, मॉडर्न एज में ब्लूम्सबेरी आ गया। मॉडर्न एज के फैक्ट हैं, 22 में टीएस एलियट का वेस्टलैंड आया, जेम्स जॉयस का यूलिसिस आया, ये नॉवल है, ये पोएम है, जेम्स जॉयस आयरिश है, बीबीसी की स्थापना हुई। और उसके अलावा यूजीन ओनेल जो कि एक फादर ऑफ अमेरिकन मॉडर्न ड्रामा है, या फादर ऑफ अमेरिकन ड्रामा भी है, इनका प्ले आया द हेरी एप, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले माना गया है। एक्सप्रेशनिस्टिक ड्रामा है ये, क्या है, एक्सप्रेशनिज्म। अभी हम मूवमेंट्स अलग से एक लेक्चर बनता है मॉडर्न एज का, उसमें पढ़ेंगे, एक्सप्रेशनिज्म है इसमें। तो हम इधर आते हैं फिर 22 टू 45 बताया, ब्लूम्सबेरी ग्रुप जिसमें वर्जीनिया वुल्फ और उनकी सिस्टर्स का ग्रुप था, और इसमें EM फॉस्टर, DS लॉरेंस भी इसके मेंबर थे। और द ग्रेट ट्रियो बताया मैंने, द ग्रेट ट्रियो में आपके आ गए TS एलियट, जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ, ये द ग्रेट ट्रियो ऑफ मॉडर्न राइटर्स हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें जेम्स जॉयस नोवेलिस्ट हो गए, TS एलियट पोएट हो गए। पोएट में आप WB येट्स को भी उसी कद पे रख सकते हैं। और
इसके अलावा मैंने फेमिनिज्म में वर्जीनिया वुल्फ की बात कर दी। तो अब अगर हम यहाँ पर जाएं, ब्लूम्सबरी हो गया, फिर इसी में बता दे रहा हूँ पोएट ऑफ 30s देखे थे मैक्स पॉन्डे, जिनका लीडर है W.H. ऑर्डन, ठीक है, या अडन। ये जो है सारे के सारे लेफ्टिस्ट हैं, मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित लेखक हैं, और 30 का जो दशक है मार्क्सवादी चिंतन का ही दशक माना जाता है। इसको हम बोलते हैं लाल दशक, रेड डिकेड, बिकॉज रेड इज द कलर ऑफ मार्क्सिज्म, राइट। सो मार्क्सिज्म का दशक माना गया है, और मार्क्सिस्ट पोएट भी है अडन, ये क्वेश्चन याद रखना। अब उसके बाद फिर अगर हम आए पोस्ट मॉडर्निज्म, तो पोस्ट मॉडर्निज्म 45 टू 65 में टीएस एलियट की डेथ हो गई। और अगर हम इधर देखें, एंग्री यंग मैन आया है। एंग्री यंग मैन आपका मूवमेंट है, ड्रामा में इसको ऑसबॉर्न लेकर आए, OSBORN, ऑसबॉर्न, जॉन ऑसबॉर्न, ठीक है। और नॉवेल्स में इसको किंग्सले एमिस लेकर आए हैं। किंग्सले एमिस का एक नॉवल है लकी जिम, नॉवल का नाम बताया था मैंने, लकी जिम, JIM, जिम, लकी जिम, जिसमें एक स्ट्रगलिंग हिस्ट्री प्रोफेसर है, उसका गुस्सा जो है समाज के खिलाफ दिखाया गया। लकी जिम किसने लिखा है? किंग्सले एमिस ने। किसका एग्जाम्पल है लकी जिम? एंग्री यंग मैन का। एंग्री यंग मैन कौन से, मतलब किस, क्यों एंग्री थे ये लोग? तो मैंने बताया था क्योंकि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कोलैप्स ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी हो गया था, और जिससे सबसे मेन क्या हो गया था, क्या हो गया था भाई, ठीक है, जॉब्स नहीं थे, ठीक है, पुअर इकोनॉमी एंड जॉबलेसनेस, these were the two big factors. Because of these people were, you can say, called as angry because they were angry with the British government, ठीक है। फिर इसी में ये तो ड्रामा और नॉवल दोनों में आया मूवमेंट, ये खाली पोइट्री में है, तो 3 कवर हो गए। यहाँ भी आप हर जगह देख रहे हो, मैं रेशियो मेंटेन कर रहा हूँ, यहाँ ड्रामा नॉवल बता दिया तो एक पोइट्री का बता दिया मूवमेंट, जैसे यहाँ बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पर पोइट्री में मूवमेंट आया, मूवमेंट पोइट्स, जिसमें फिलिप लार्किन है, ये एक लाइब्रेरियन थे बाय प्रोफेशन, और इनकी जो पोएम्स हैं उसमें एंटी मॉडर्निस्ट अप्रोच हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर मैंने बताया था कि इनको एंटी TS एलियट भी कहा जाता है, एंटी TS एलियट। TS एलियट ने जैसा जैसा लिखा, इसके जस्ट ऑपोजिट लिखा है फिलिप लार्किन ने, ठीक है। तो याद रखना, अगर TS एलियट ने मॉडर्न लिखा है तो फिलिप लार्किन ने कैसे लिखा होगा? एंटी मॉडर्न लिखा होगा। TS एलियट ने फ्री वर्स लिखा है तो फिलिप लार्किन ने क्या लिखा होगा? ब्लैंक वर्स लिखा होगा। ये फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स अपने दिमाग में सेट कर लो बस, ये आपको गैस करने में बहुत हेल्प करेगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ब्लैंक वर्स लिखा है तो TS एलियट ने फ्री वर्स लिखा है, दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। यहाँ पर TS एलियट और फिलिप लार्किन एंटी हो गए, तो फिलिप लार्किन मैंने बताया, ठीक है। और फिर लास्ट में कंटेम्प्रेरी एज आ जाती है गाइस, जिसकी 1965 टू टिल डेट। इसमें इंडियन राइटर्स का बोलबाला है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, जिसमें सबसे बड़ा नाम, अगर आप एक नाम लिखना चाहें तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, सलमान रश्दी, ठीक है, जिनको 2 बार बुकर है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी रिसेंटली उनको जो है लाइफ थ्रेटनिंग अटैक हुआ है, जिसमें किसी तरह वो बचे हैं। ही हैज लॉस्ट अनफॉर्चुनेटली हिज वन आई एंड आल्सो बिकम पैरालाइज्ड, ठीक है। तो सलमान रश्दी पे ये अटैक जो हुआ, वहां से क्वेश्चन पक्का बनने वाला है आपके IT लेक्चर में, ठीक है। ये कब हुआ अटैक, और आप लोग बिल्कुल इस पे पूरा डिटेल 1 पेज का राइटअप बना लीजिए कि सलमान रश्दी पे अटैक क्यों हुआ, कब हुआ, कौन से नॉवल की वजह से हुआ। इस पर मैं पूरा डिटेल बता चुका हूँ अपने लेक्चर्स में, ठीक है। कहाँ पर हुआ ये, कहाँ स्पीच दे रहे थे, ठीक है, और किसने इनको मारा, ठीक है। और उसके बाद भी इनका एक नॉवल आ गया, ठीक है। तो अभी जब भी पब्लिक अपीयरेंस करते हैं तो आप देखेंगे कि एक आंख इनकी नहीं है अब, तो ब्लैक रंग का एक वो लगा के आते हैं। तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे सारे राइटर्स ने उसकी एक घनघोर निंदा करी, और ऑब्वियसली निंदा करने लायक काम ही है, ठीक है। तो सलमान रश्दी, इसके जो तार हैं वो उसी बात से बताए जा रहे हैं कि इन्होंने जो सैटेनिक वर्सेस लिखी थी 1988 में लिखी थी, कितनी पुरानी बात हो गई, 30-35 साल हो गए। तो उस समय जो है फतवा जारी हो गया था इन पे, ठीक है। और फतवा जो जारी हुआ तो इस्लामिक सेंटिमेंट्स भड़क गए थे। इसके बाद से इन्होंने इंडिया छोड़ दिया था, वैसे बॉम्बे के, और फिर उसके बाद काफी समय लंदन रहे, फिर उसके बाद ये अमेरिका गए थे वहां, तो वहां पर इन पर हमला हो गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी बनेगा कि 2023 में इन पर हमले के बाद इन्होंने अपना कौन सा नॉवल नया छापा है। तो सारी चीजों का आप राइटअप जरूर ले लीजिएगा। मैं आप लोगों से कल मिलता हूँ, ठीक है। कल ये पूरा रिवीजन करके आना, कल फिर हम कोट्स और फिर आगे की